پیارے بچوں، کسی جنگل میں ٹونو چڑیا اور وہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جنگل میں موسم بہت زیادہ خراب ہو گیا، جبکہ ٹونو چڑیا کے بچے اور ٹونو چڑیا جو تھی وہ بہت زیادہ بھوکی تھی۔ وہ ان کے لیے خوراک کا بندوبست کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے بیٹوں کو کہتی ہے کہ موسم خراب ہے، آپ نے باہر نہیں جانا، میں بارش آنے سے پہلے جلدی جو ہے وہ آپ کے لیے بھوجن لے کر آ جاؤں گی۔ بڑے بیٹے کو کہتی ہے کہ آپ نے دونوں بہن بھائیوں کا خیال رکھنا ہے، میرے آنے تک باہر نہیں جانا، میرا انتظار کرنا ہے، میں خوراک لے کر جلد ہی واپس آ جاؤں گی۔ وہ اپنے بچوں کو نصیحت کرتی ہے کہ پیارے بچوں، جو ہے آپ نے اس بارش اور طوفانی رات کو اندر بیٹھ کر گزارنا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ طوفان آپ کو بہا کر لے جائے۔ اس کے بعد پیارے بچوں کو خوراک کی تلاش میں چلی جاتی ہے تو اسے ایک کوا دیکھتا ہے، وہ اسے آواز دیتا ہے کہ ٹونو چڑیا، ٹونو چڑیا۔ اس پر پیارے بچوں ٹونو چڑیا رک جاتی ہے اور اس سے بات کرتی ہے، جی کالو بھیا، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اتنے موسم میں تم کیوں باہر جا رہی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ میرا بھوجن ختم ہے، اس لیے میں باہر جا رہی ہوں۔ اس پر کالو کہتا ہے کہ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ ٹونو چڑیا کہتے ہیں، نہیں، پچھلی بار بھی آپ نے مجھے دھوکہ دیا تھا، آپ نے میرا بھوجن چھین لیا تھا، میں ایک کمزور پنچھی ہوں، اس لیے میں آپ کو ساتھ لے کر نہیں جاؤں گی۔ اس کے بعد وہ چلی جاتی ہے بھوجن کی تلاش میں۔ گوری کہتی ہے کہ آج تو ٹونو چڑیا نے آپ کو باتیں سنا دی ہیں، یہ بڑی جو ہے اکڑیلو بن گئی ہے، اس کو فخر ہو گیا ہے۔ کالو کہتا ہے، اس کو تو میں اس بات کی سزا ضرور دوں گا، تم ٹینشن نہ لو۔ جب ٹونو چڑیا جنگل میں پہنچتی ہے تو پیارے بچوں زور سے بارش شروع ہو جاتی ہے۔ بارش اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ اڑ نہیں سکتی اور وہ ایک درخت پر جا کر بیٹھ جاتی ہے، اور وہ اسی اثناء میں بیٹھی ہوئی سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس کے بچے کا کیا بنا ہوگا۔ پھر وہ سوچتی ہے کہ اس کا جو بڑا بیٹا ہے وہ ضرور ان کا خیال رکھے گا، وہ ان کو باہر نہیں جانے دے گا، اور وہ پھر آگے چلنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ اپنی خوراک تلاش کر لے، لیکن پیارے بچوں وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ بارش بہت زیادہ تیز تھی۔ پھر دوبارہ وہ اسی ٹہنی پر آ کر بیٹھ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ ادھر جو تھے وہ بچے جو تھے وہ بھی اپنی ماں کا بے تابی سے انتظار کر رہے تھے کیونکہ انہیں بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ چھوٹی جو بیٹی تھی وہ اپنے بھائی کو کہتی ہے، بھائی موسم بہت پیارا ہے، اب میرا دل کرتا ہے کہ باہر چلے جائیں، تھوڑا سا انجوائے کر لیں، تھوڑا سا دیکھ لیں یہ کس چیز کی آواز ہے اور کس کی روشنی آ رہی ہے، یہ اوپر سے پانی کیوں گر رہا تھا۔ پیارے بچوں وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بارش ہے، کیونکہ ان کے زندگی میں لائف میں پہلی بار بارش آئی ہوئی تھی اور وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کیا ہے۔ اس پر چھوٹا بھائی بھی اسے یہی کہتے ہیں کہ ہم باہر چل کے دیکھتے ہیں یہ جو شور ہے یہ کیا ہے، یہ بارش کیوں آ رہی ہے، اور بجلی جو ہے یہ روشنی جو ہے یہ کیوں آ رہی ہے اور یہ کہاں سے آ رہی ہے، ہمیں باہر جا کر اس کو دیکھنا ہی ہوگا۔ اس پر گوری کہتی ہے کالو کوے کو کہ ٹونو چڑیا کے بچے جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی طرح چلتے ہیں اور ان کو بارش میں بھگاتے ہیں تاکہ یہ بیمار ہو جائیں اور جو ہے ٹونو چڑیا کو اس کی سزا مل جائے۔ پھر وہ دونوں اس کے پاس جاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ یہ بارش نہیں ہو رہی، پیارے بچوں یہ جو ہے آپ کی ماں کو چوٹ لگی ہے، وہ رو رہی ہے اور یہ اس کے رونے کی وجہ سے یہ پانی آ رہا ہے، اور یہ جو روشنی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آپ کی ماں آپ کو روشنی دے رہی ہے تاکہ میرے بچے آئیں اور مجھے لے جائیں۔ پیارے بچوں وہ نہیں جانتے تھے یہ کالو کوا اور گوری کوی مکار ہیں، وہ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں کیونکہ ٹونو چڑیا ان کو خوراک کے لیے بھوجن کے لیے ان کو اپنے ساتھ نہیں لے گئی تھی۔ وہ اسی بات پہ غصہ تھے، اور وہ جو بچے تھے وہ تو بچے ہی تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس کا جو بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ اپنے بھائی اور چھوٹی بہن کو جو رونے لگے ہوئے تھے، رو رہے تھے، ان کو تسلی دیتا اور کہتے کہ آپ بیٹھو، میں اپنی ماما کو تلاش کر کے آتا ہوں۔
प्यारे बच्चों, वो जो छोटा परिंदा था वो पहली बार उसने उड़ना सीखा था और उसे वो उस बारिश में बहुत मज़ा आ रहा था। उसके पंख भी गीले नहीं हो रहे थे। इस पर गोरी कभी बहुत खुश थी। वो कालू कौवे को कहती है, मुझे तो मज़ा आ गया है। जब वो आएगी तो उसका एक बच्चा नहीं होगा और कहीं पर इस तेज आंधी में मरा पड़ा होगा। मेरा दिल खुश होगा। कालू कौवा कहता है, ठीक कहा है आपने, मैं भी खुश हूँ। इधर टोना चिड़िया जो थी वो बहुत बेकरार थी। वो बेचारी बार बार अपने बच्चों के बारे में सोच रही थी कि मेरे बच्चे का क्या बना, अगर वो बारिश में निकल आए तो उसका क्या होगा। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और उसकी ख्वाहिश थी कि वो उड़कर जल्दी जल्दी पहुंच जाए, लेकिन वो नहीं जा सकती थी। जबकि उसका बच्चा जो था वो लगातार बारिश में भीग रहा था। वो पहली बार उसने उड़ना था, इसलिए उसे मज़ा आ रहा था और वो अपनी वो अपनी खुशी की खातिर बहुत जल्दी जल्दी सफ़र करता है। और उसे एक बूढ़ी फाख्ता जो एक परी होती है प्यारे बच्चों, वो उसे मिलती है। वो उससे पूछती है कि आप इस तेज़ बारिश में कहाँ जा रहे हो। और वो उसे बताता है कि उसकी माँ जो है उसको चोट लगी है, जिसकी वजह से वो रो रही है। ये पानी जो है उसकी आंखों से आ रहा है और जो रोशनी है वो हमें रोशनी दे रही है कि मेरी मदद करो। इस पर फाख्ता कहती है कि आपको ये सब किसने कहा है। तो वो बताती है कि कालू कौवे और गोरी अंकल ने मुझे ये सब कुछ गोरी आंटी ने मुझे ये सब कुछ बताया है। इस पर फाख्ता कहती है कि उसने आपसे झूठ बोला है। ये बारिश है और ये जो रोशनी आपको नजर आ रही है ये आसमान की तरफ से बिजली चमकती है। तुम इतनी बारिश में क्यों कर निकल आए हो। उन्होंने तो आपके साथ मजाक किया, झूठ बोला है। इस पर वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो कहता है कि मैं अब अपनी माँ के पास कैसे जाऊंगा। प्यारे बच्चों, फाख्ता जो थी वो दरअसल एक परी थी। वो हमेशा जानवरों के जंगल में मुश्किल वक्त में उनकी मदद करती थी। उसने भी उस छोटे से परिंदे की मदद की और उसे कहा कि आप टेंशन ना लो, मैं आपको एक ऐसी छाता दूंगी, जादू छाता, जिसे आप लेकर अपने घर की तरफ भी चली जाएंगी और आपको वो छाता भोजन की तरफ भी ले जाएगा। बस तो टेंशन न लो, अब रोना बंद करो, मैं जो है आपके लिए कुछ करती हूँ। बारिश भी बहुत तेज है और बारिश की वजह से जो है आपकी माँ भी कहीं फंसी हुई होगी और ये छाता जो है ये आपको अपनी माँ की तरफ भी ले जाएगा। और ये लो छाता, ये एक जादू छाता है, जो आप इससे कहोगी ये वैसे ही करेगा। फिर उसके बाद वो फाख्ता का शुक्रिया अदा करती है और उसे कहती है कि आपने मेरी आड़े वक्त में मदद की है। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ और ये जो एहसान है मैं आपका ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। इस पर फाख्ता कहती है कि आप भी ज़िंदगी में किसी न किसी मुसीबत ज़दा लोगों की जब आप मदद करोगे तो ये मेरा एहसान उतर जाएगा। फिर बच्चा उससे वादा करता है कि वो मुश्किल वक्त में दूसरे पक्षियों की मदद करेगा। फिर वो छाते को कहता है कि मेरी माँ की तरफ ले जा। प्यारे बच्चों, छाता उसे ले जाता है और वो नदियों, जंगलों, पहाड़ों से होता होता आखिरकार उसे एक दरख्त पर अपनी माँ नजर आती है। प्यारे बच्चों, फिर वो अपनी माँ के पास पहुंच जाता है तो वो उसे सारा स्टोरी बताता है जो उसके साथ वाकया हुआ है। वो उसे बताता है कि वो किस तरह उसने उसकी मदद की है। ये जादुई छाता है जो उसे यहाँ तक ले आया है। और अपनी माँ को बताता है कि किस तरह कालो कौवे और गोरी आंटी ने उनके साथ ये बेहुना खेल खेला है और इस तूफानी बारिश में मुझसे जो है कहा कि आपकी माँ रो रही है। ये बारिश जो थी इसके बारे में उन्होंने मुझे ऐसा ही कहा था। मैं इस बारिश में आपके लिए आई हूँ, जबकि छोटी बहन और भैया वहाँ घर में अकेले हैं। ये जादू छाता मुझे एक फाख्ता ने दिया है। उसने कहा था कि आपको जंगल में ये जो छाता है ये आपको भोजन भी देगा और मदद भी करेगा घर तक जाने की। प्यारे बच्चों, उसकी माँ जो है वो उससे गले मिलती है और उससे कहती है कि आपने अच्छा ही किया, लेकिन आइंदा मेरी बात का ख्याल रखना। हाँ, फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और उसे नसीहत भी करती है कि आइंदा किसी की बात पर यकीन मत करना। हाँ, इसके बाद गोरी कवि और कालू कौवा जो था वो भी बहुत परेशान थे। उनका भोजन भी खत्म हो गया था।
वो भी चाहते थे कि वो भी खुराक की तरफ चलें। फिर उन्हें ख्याल आता है कि एक छोटी चिड़ी और उसका अगर बच्चा इस तूफानी बारिश में जा सकता है, तो हम उससे बड़े परिंदे हम क्यों नहीं जा सकते। फिर वो बारिश में जाते हैं, लेकिन इतनी तेज बारिश और इतनी तेज आंधी की वजह से वो सफर नहीं कर पाते। बांदी जो है उसे पीछे की तरफ धकेलती है, लेकिन टोनू चिड़िया और उसका बच्चा आसानी से अपने भोजन की तरफ चले जाते हैं। और इतना ज्यादा भोजन देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो बहुत ज्यादा भोजन जो है वो अपने पास एक थैले में भर लेते हैं। फिर वो उसे कहते हैं कि हमें घर की तरफ ले जाओ, जादू छाते को कहते हैं। वो इतना ज्यादा छातन देखकर खुश होते हैं, तो फिर वो अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। तो आगे जब वो रास्ते में जाते हैं तो उसे किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। तो वो जादू छाते को कहते हैं कि कुछ जानवर जो है मुसीबत में फंसे हुए, हमें उधर ले जाओ। जब देखते हैं तो वो तो कालू कौवा और उसकी बीवी गोरी कवि जो थी वो झाड़ियों में फंसी हुई थी, और वो उनसे इल्तिजा करती है, प्लीज हमें बचा लो, हम यहाँ फंसे हुए हैं, वरना हम मर जाएंगे, हमें भूख भी बहुत लगी हुई है, बचा लो। टोनू चिड़िया को उस पर तरस आ जाता है, और छोटे बच्चे को फाख्ता की वो बात याद आ जाती है कि जब किसी को मुसीबत में देखो तो उसकी मदद कर देना, तो मेरा ये एहसान खत्म हो जाएगा। फिर वो छोटा बच्चा अपनी माँ से कहता है कि इनको निकाल दो, इनको अपने किए की सजा मिल गई, इन्होंने हमसे झूठ बोला था। प्यारे बच्चों, फिर टोनू चिड़िया जो है उनको कहती है कि मैं आपको यहाँ से निकालती हूँ और आपको मैं भोजन भी देती हूँ। प्यारे बच्चों, फिर वो उसको उन झाड़ियों से निकालती है और उनको भोजन भी देती है, और उनको कहती है कि हमारे साथ आप घर चलो, बहुत तूफानी बारिश हो रही है, ऐसा ना हो कि आप फिर जो है भीग जाओ और आप मर जाओ। फिर वो चारों जो है वो अपने घर की तरफ चले जाते हैं भोजन लेकर, और जादू छाता फिर वो अपने घर पहुंच जाते हैं। टोनू चिड़िया अपने घर पहुंच जाती है, तो गौरी और कालू कौवा जो है वो बहुत परेशान होते हैं कि अगर ये ना आते तो हम वहीं मर जाते। प्यारे बच्चों, इसके बाद वो टोनू चिड़िया और जादू छाता और वो जो थे वो हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर हम किसी का बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। आपसे एक सवाल है कि जादू चाहता किसने दिया था टोनू चिड़िया के बच्चे